So, good morning, all of you. Welcome to online classes of Yale Public School. Today, we'll continue chapter number 19 of EVS. Okay, so let's start. Think and write the answers of the following. What things do earthquake victims need? Earthquake जो victims हैं, उन्हें किस चीज की need रहती है? So, earthquake victim needs food, pure drinking water, shelter, medicines, clothes, etc. Okay, उन्हें food का requirement होता है, drinking water, shelter, medicines and clothes, etc. In what ways would you help in an earthquake victim? Okay, किसी भी earthquake victim की जो कि injured person है, suffer कर रहा है जो कि earthquake से, उसकी आप कैसे help करेंगे? So we would help an earthquake victim by giving them food, clothes, medicines and मनी. ओके, तो हम ये सब चीजें देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज search the newspaper and journals for the places that had an earthquake recently. What type of losses occurred there due to that earthquake? Okay, अभी आप recently जो भी newspapers हैं या journals हैं वहां पर आपको recently किन places पर earthquake आए हैं वो आपको find out करना है. ओके, एंड किस तरह का जो लॉसेस है, हानि वहां पर डैमेजेस हुए वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, कि किस तरह का जो लॉसेस है वो वहां पर अटेंड हुआ है. So recently in Manipur faced a severe earthquake in 2021. Most of the houses and shops were converted to heaps of debris. Thousands of people and livestock got buried under the debris. Here, next question is, if there is a disaster like an earthquake, what should we do? Okay, earthquake जैसा disaster है, means जो natural accident है, natural calamities हैं, वो अगर होती हैं तो आप उस कंडीशन में आप क्या करना चाहिए आपको? So whenever there is an earthquake, we should immediately come out of our houses in an open area. Okay, and if you are not able to go out, then sit under a strong place like table, etc. until the vibration of the earth stop. Okay, सो आपको क्या करना है, अगर अर्थक्वेक की कभी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ती है तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली अपने घर से बाहर ओपन एरिया में आ जाना है. ओके, एंड अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर में ही किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लेस लाइक कोई टेबल है उसके नीचे आपको क्या करना है, सिट करना है जब तक कि जो अर्थ की वाइब्रेशन है वो स्टॉप नहीं हो जाती. ओके, अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता. Now next is intensity of an earthquake. What is the meaning of intensity? Through the intensity of an earthquake, we can know that how much loss will be there due to an earthquake. Intensity means earthquake कितना powerful है. Okay, earthquake की जो power है, strength है, वो उसे हम क्या कहते हैं, intensity कहते हैं. Okay, so we can know that how much loss will be there due to an earthquake. Okay, so हम सबको पता है कि भूकंप जो है उसकी वजह से किस प्रकार की लॉसेस होता है, हानि होता है उसकी वजह से. An earthquake occur due to the movement inside the earth crust. और earthquake किसकी वजह से होता है, जो अर्थ की अर्थ क्रस्ट है उसमें मूवमेंट की वजह से उसमें क्या होता है, आता है अर्थक्वेक आता है. ओके, अर्थ क्रस्ट में जब मूवमेंट होता है मींस अर्थ की जो इनसाइड जो लेयर्स होती हैं, ओके, तो वो लेयर्स सब एक दूसरे के ऊपर स्प्लिट होने लगती हैं, खिसकती हैं एक दूसरे के ऊपर या मूव होती हैं. ओके, तो जब अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जब मूवमेंट होता है, लेयर्स में जब मूवमेंट होता है अर्थ के इनसाइड, तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है. ओके, these movements start from one point and spread the like waves of water. और ये जो मूवमेंट है ये ओनली एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जैसे वाटर की वेव्स हैं, पानी की जो लहरें होती हैं वो फैलती हैं, वैसे ही ये भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है. एक पॉइंट से शुरू होता है अर्थक्वेक एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक का सेंटर कहा जाता है, भूकंप का केंद्र बिंदु जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ. ओके, so उसे हम center of the earthquake कहते हैं. The intensity of an earthquake is measured on a Richter scale. Okay, और earthquake की जो intensity है, strength है कि ये earthquake कितना powerful है. Okay, तो उसकी power या strength किससे measure की जाती है, Richter scale से. When the intensity of an earthquake is more than 5, then the buildings can collapse, and when it is less than 5,
द बिल्डिंग्स वी विल फील द वाइब्रेशंस ओनली, ओके। तो उस रिएक्टर स्केल पे जब हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, तो अगर अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है वो 5 से अगर अधिक होती है, 5 से ज्यादा होती है, तो बिल्डिंग्स क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, ओके। मीन्स फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है, वो हीप ऑफ डेब्रिस जिसे हम कहते हैं मलबे में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। बट अगर इसकी रिएक्टर जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो लेस देन 5 है, 5 से कम होती है, तब हमें ओनली क्या फील होता है, वाइब्रेशंस फील होती है, ओके। हमें ऐसे लगता है कि जो धरती है, अर्थ है, वो वाइब्रेट कर रही है, ओनली वाइब्रेशन फील होती है, उस वक्त कोई भी लॉस या डैमेजेस हाउस या बिल्डिंग को नहीं होता है। द थिंग्स will seem to be shaking and cracks develop in the wall of the houses, okay। और उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो चीजें हैं, थिंग्स हैं, वो हमें हिलती हुई प्रतीत होती थी, जैसे ऐसा फील होता है हमें कि जो थिंग्स हैं वो हिल रही हैं, और जो हाउसेस की वॉल है, घरों की जो दीवारें हैं, उनमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ओके। उसमें दरार आ जाती है, ओके। जो कम वाइब्रेशन होती है, जो कम इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक होता है, उसमें ओनली हमें वाइब्रेशंस फील होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो थिंग्स हैं वो शेक कर रही हैं, हिल रही हैं, एंड जो हाउसेस की या बिल्डिंग्स की वॉल होती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। An earthquake resistant house can tolerate an earthquake of 7 reactor intensity, okay। और जो earthquake resistance houses, okay, जो कि भूकंप को सहने के लिए, कि भूकंप के जो झटके हैं, भूकंप की जो earthquake की जो इंटेंसिटी है, उसको वो क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ओके। तो वो 7 रिएक्टर जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी तक क्या कर सकते हैं, 7 रिएक्टर की इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को वो लोग क्या कर सकते हैं, वो हाउसेज जो हैं टॉलरेट कर सकते हैं, ओके। उन्हें उनमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, बिकॉज वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस हाउसेज होते हैं। क्लियर? नाउ डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू फ्लड। अभी तक हमने डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से पढ़ा, अर्थक्वेक की वजह से, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू फ्लड। डिस्ट्रक्शंस मींस डैमेज, ओके। अब हम फ्लड मींस बाढ़ की वजह से जो पानी का लेवल है रिवर्स में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हैवी रेनफॉल होता है तब जो फ्लड की कंडीशन है वो कॉज होती है, ओके। तो हम फ्लड की वजह से किस तरह के डैमेज हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। इट वाज अ रेनी सीजन, इट वाज रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग, ओके। ये एक रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, ओके। एंड सुबह से ही जो रेन है इंटरमिटेंटली मींस रुक रुक कर, कभी स्टॉप हो रही है, कभी स्टार्ट हो रही है, इस तरह से मॉर्निंग से अब तक कंटिन्यूसली, या जो इंटरमिटेंटली मींस रुक रुक कर लगातार जो क्या है बारिश हो रही है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन अ वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल, ओके। एंड जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसे कहते हैं, मौसम विभाग, ओके, जो हमें मौसम की जानकारी देता है, वेदर की जानकारी देता है, ओके। उन्होंने वार्निंग दिया है कि आज क्या होने वाला है, हैवी रेनफॉल होने वाला है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। There was heavy rain till the evening, okay, and शाम तक भारी बारिश भी हुई थी। जब उन्होंने वार्निंग दी थी रेनफॉल की, तो शाम तक क्या हुआ था, भारी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। Very high speed winds started blowing along with frequent lightning, okay, and क्या होने लगा था, बहुत ही ज्यादा जो तेज हवाएं हैं, स्पीड विंड्स हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी थी, और साथ में क्या हुआ था, along with frequent lightning, और बिजली भी गिरी थी, ओके। जब भी हैवी रेनफॉल होता है या रेनफॉल होता है, तब उसके साथ में जो लाइट है वो भी क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है ना, बिजली भी गिरती है। So all the people were in their houses only. There was a power failure and it was dark everywhere. Okay, और जो सभी लोग थे वो सब अपने घरों में थे, okay, और तभी क्या हुआ, पावर फेलियर मींस लाइट चली गई, okay, बिजली का जो पावर का जो कट है वो लग गया है, and it was dark everywhere, और हर जगह क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। Water was seen everywhere, और हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी, वाटर ही वाटर नजर आ रहा है। Although the roof of my kacha house does not leak, but that day the water started leaking. And जो वैसे तो जो मेरे कच्चे घर की जो हाउस की रूफ है, छत है, वो कभी भी लीक नहीं करती है, मीन्स उसमें से पानी नहीं टपकता है। बट दैट डे वाटर स्टार्टेड लीकिंग, लेकिन उस दिन पानी टपकना शुरू हो गया, बिकॉज जो हैवी रेनफॉल हो रहा था उसकी वजह से, ठीक है। द नाइट पास्ट somehow in the morning suddenly I heard the people shouting, okay, and जो रात थी वो तो किसी तरह बीत गई, okay, the night passed somehow in the morning suddenly I heard the people shouting, और मॉर्निंग में मैंने क्या सुना कि लोग जो हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनके लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, okay।
A dam had broken at the nearby villages. पास के गांव में क्या हुआ था, जो एक बांध है वो क्या हो गया था, डैम जो है वो ब्रोकन हो गया था, टूट गया था. A very heavy flow of water started penetrating in the houses. और बहुत ही तेजी से जो बहता हुआ पानी था वो उसने क्या किया था, लोगों के घरों में उसने घुसना शुरू कर दिया था. ओके, पानी जो है वो बहुत ही तेजी से क्या हो रहा था, घरों में घुसने लगा था, एंटर करने लगा था. The household articles, utensils, etc. started floating in the water. Okay, and जो household articles means घर का जो भी सामान था, बर्तन थे, utensils थे, वो क्या कर रहे थे, water पर float कर रहे थे, पानी पर तैर रहे थे. People took their children and run towards the high altitude areas. Okay, लोगों ने अपने बच्चों को उठा लिया था. Okay, और वो किसी हाई जगह पर, हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर, मतलब ऊंचे जो स्थान होते हैं वहां पर उन्होंने भागना शुरू कर दिया था. बिकॉज जो लोअर एरिया थे वहां पर तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था. पीपल only one by one all the huts were submerging in the flood water. और एक एक करके जितनी भी झोपड़ी थी, हट्स थी, वो फ्लड वाटर में क्या हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी, डूब गई थी. ओके, now the roofs of the houses broke. The roofs of the houses, broken branches of trees, bodies of dead birds, animals, etc. were seen floating on the water. और अब पानी पर क्या दिखाई दे रहा था, पानी पर हमें दिखाई दे रहा था टूटे हुए जो पेड़ों की ब्रांचेस हैं टूटी हुई, वो हमें पानी पर दिखाई दे रही थी, फ्लोट करती हुई. रूफ्स ऑफ द हाउसेज, जो हाउसेज हैं उनकी छत दिखाई दे रही थी. बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स डेड हो गए थे, उनकी जो बॉडीज हैं वो वाटर पर फ्लोट कर रही थी. एनिमल्स एंड बर्ड्स की बॉडीज होके वो हमें वाटर पर फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही थी. पीपल, we were watching all of this standing helplessly. और हम सब helplessly means हम उनकी help नहीं कर पा रहे थे. ओके, सो helplessly हम क्या कर रहे थे, ये सब कुछ होते हुए हम देख रहे थे. ओके, so my father called his friend in the nearby village and then had a telephonic conversation with the तहसीलदार and told him about the situation of our village. उसके बाद मेरे फादर ने अपने जो नियर बाय विलेज में, पास के गांव में मेरे फादर के, मेरे पिताजी के जो फ्रेंड रहते थे, उन्होंने उसे फोन किया, बुलाया, और उन्होंने जो तहसीलदार है उसके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया. मींस उस पर टेलीफोन पे, फोन पर बात की और उसको हमारे विलेज की, गांव की जो भी सिचुएशन थी उसके बारे में बताया. In a very short time, many people from the nearby town reached our village carrying ropes and other materials. और थोड़ी ही देर में जो पास के गांव के लोग थे वो हमारे गांव में पहुंच गए और अपने साथ उन्होंने क्या कैरी करके लाए थे, रोप, रस्सियां एंड अदर मटेरियल. ओके, जो फ्लड में, बाढ़ में जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए वो क्या लेकर आए थे अपने साथ में, बहुत से लोग अपने साथ में रस्सियां और जो दूसरा सामान है वो सब लेकर आए थे. ओके, after some time the officials of the tehsil and police officers also reached there. और थोड़ी ही देर बाद वहां के जो ऑफिशियल्स थे, वहां के जो तहसीलदार थे और पुलिस कर्मी थे, अधिकारी थे, वो सब वहां पर पहुंच गए. They shifted all the flood victims to the relief camp set up in the government building and in the nearby villages. Okay, and उन्होंने जो flood victim थे, बाढ़ से पीड़ित जो लोग थे, उनको कहाँ भेजना शुरू कर दिया, जो उन्होंने रिलीफ कैंप, राहत जो कैंप है वो सेटअप किए थे. ओके, कहाँ पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, सरकारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर, और नियर बाय विलेजेस में जो उन्होंने टेम्परेरी क्या बनाई थी, इंस बनाई थी. ओके, रहने के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए थे. तो वहां पर उन्होंने जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको भेजना शुरू कर दिया. Due to the shortage of space, temporary shelters were arranged in the tent. और स्पेस की शॉर्टेज की वजह से, जगह की कमी की वजह से टेम्परेरी शेल्टर बनाए गए थे. ओके, जिनका अरेंजमेंट कहाँ किया गया था, टेंट बनाए गए थे. ओके, एज अ टेम्परेरी शेल्टर. Many of the villagers got carried away with the flood water and the policemen were searching them. और बहुत सारे जो गांव वाले थे वो फ्लड वाटर के साथ, बाढ़ के पानी के साथ में बह गए थे. ओके, और जो पुलिस कर्मी थे वो क्या कर रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे. ओके, फाइंड आउट कर रहे थे. An ambulance was commuting continuously taking the injured flood victim. Okay, और जो एम्बुलेंस थी वो क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली जो बाढ़ पीड़ित हैं, फ्लड विक्टिम हैं, उनको ले जाने का काम कर रही थी. The
food items, medicines, etc. were provided by the NGOs and the administration. Okay, and जो food packets हैं या medicines हैं वो किसके द्वारा, जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, okay, संस्थाएं होती हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं, उनके थ्रू, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार है, वो सब लोगों को फूड आइटम्स एंड मेडिसिन क्या कर रहे थे, प्रोवाइड करवा रहे थे. क्लियर? See in the picture, it's a scene of flood. Okay, ये देखिए बाढ़ का एक सीन है. इस तरह से हर जगह फ्लड वाटर है. कार भी देखिए वाटर में सबमर्ज हो गई है, एंड पीपल इस तरह से एक दूसरे से हैंड को होल्ड करके चेन बनाकर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, now after some days the flood water level decreased. I was watching all this and I saw that people returned to their villages and the villages was in the worst condition. थोड़े दिनों बाद क्या हुआ था, जो फ्लड वाटर का लेवल था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था. ओके, पानी का जो लेवल बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था. एंड मैं ये सब क्या कर रहा था, देख रहा था, वॉच कर रहा था. एंड आई सॉ दैट पीपल रिटर्न टू देयर विलेज, और मैंने क्या देखा कि जो लोग हैं वो अपने गांव में, विलेज में वापस आ रहे हैं. एंड द विलेजेस वाज इन द वर्स्ट कंडीशन, और जो विलेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है. There was no signs There were no sign of the presence of the kacha houses, only the broken walls and remains of some of the kacha houses were seen. Okay, वहां पर जो कच्चा हाउसेज हैं उनका कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब उनका कुछ भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था. ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई कच्चे हाउसेज थे ही नहीं. ओके, ओनली द ब्रोकन वॉल्स एंड रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द कच्चा हाउसेज वर सीन. वहां पर हमें केवल टूटी हुई जो वॉल्स हैं, ब्रोकन वॉल्स हैं वो, और कुछ रिमेन्स कच्चा हाउसेज के दिखाई दे रहे थे. ओके, Some of the पक्का houses were also damaged, और जो कुछ पक्के houses हैं वो भी क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे, नुकसान हो गया था उनमें भी. There was moisture in the walls, और जो houses की walls थी उसमें क्या था, moisture था, नमी. क्योंकि बिकॉज वहां पर बहुत दिनों तक वो फ्लड का वाटर रहा था ना, तो वो walls एंड जो roofs हैं, houses हैं, पूरी तरह से सबमर्ज हो गए थे, डूब गए थे. तो जो walls हैं उनमें अभी भी क्या था, moisture था, वो दीवारें क्या थी, गीली थी. There was growth of mosses in most of the places, और वहां पर सभी जगह पर क्या हो गया था, मॉसेस ग्रोथ करने लगी. क्योंकि मॉसेस क्या होते हैं, ग्रीन कलर का जो एक काई जिसे हम कहते हैं, वो जहां बहुत दिनों तक पानी जब इकट्ठा रहता है ना, वाटर अकोमुलेट रहता है, तो वो ग्रीन कलर के जो मॉसेस हैं वो वहां पर ग्रोथ करने लगते हैं. ओके, तो वहां पर जो मॉसेस हैं वो ग्रो करने लगे थे. द एंटायर एरिया बिकम मडी, और जो पूरा एरिया है वो कैसा हो गया था, मडी हो गया था. मडी मींस कीचड़ वाला. ओके, बिकॉज वहां पर काफी टाइम तक क्या था, वाटर फील्ड था, इसलिए दैट्स व्हाई वो एरिया कैसा हो गया था, मडी. There was a foul smell everywhere, और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा foul means bad smell. ओके, बुरी जो स्मेल है, एक दुर्गंध जिसे हम कह सकते हैं, बैड ऑर्डर, वो वहां पर सब जगह फैली हुई थी. The administrators and the volunteers of the NGO started a cleanliness campaign. Okay, एंड क्या हुआ था, जो भी एनजीओ थे, ओके, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, और जो भी उनके उनके वॉलेंटियर्स ने, और क्या किया था, एक क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया था, साफ सफाई का अभियान चलाया था वहां पे. ऑल द विलेजर्स गेव देयर फुल कॉपरेशन, और जितने भी गांव वाले थे वो भी उनको अपना फुल कॉपरेशन दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे. द वेल, स्टेप वेल, other water reservoirs, etc. were cleaned and medicines, chemical cleaning agent were put inside them. Okay, and जो भी wall है, step well है, means जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, या water के जो भी resources हैं, उनको clean किया जा रहा था. Okay, because उसमें क्या mix हो चुका था, flood water mix हो चुका था, and वो water कैसा हो गया था, dirty हो गया था. That's why उनमें जो केमिकल क्लीनिंग एजेंट है, ओके, वाटर को क्लीन करने के लिए, लाइक क्लोरीन है, ओके, या फिर अदर जो मेडिसिन हैं, ऐसे कुछ केमिकल क्लीनिंग एजेंट डाले जा रहे थे जो कि इस वाटर को क्लीन कर रहे थे. एंड बिल्डिंग्स वर रिपेयर, जो भी बिल्डिंग एंड हाउसेस हैं जो डैमेज हुए थे उनको भी क्लीन किया जा रहा था. रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्लड. ओके, इस तरह से देखिए, फ्लड के ड्यूरिंग इस तरह से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू मींस बचाव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है. Now think and answer the following. What type of difficulties were faced there
ड्यूरिंग रेनी सीजन में किस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं वो हमें फेस करनी पड़ती है. सो द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर हाई स्पीड्स ऑफ विंड अलोंग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, power failure, water leakage from the roofs of kacha houses, and household articles, utensils, etc. float in water. Okay, and also broken branches of trees are float in water. Okay, तो इस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं वो हमें कच्चा हाउसेज में या फिर जो रेनी सीजन है उसमें फेस करनी पड़ती है. क्लियर?